Okay class, good morning. So let me show you the screen. Class, I think you are able to see the screen. Okay. So class, yesterday we have already completed the small part of chapter verb. Okay. Until now we came to know about the verb. That verb is the action word, and all the action word we have already completed. We have seen a lot of examples of action verbs. Like we have also talked about two types of action verb: physical action and mental action. Physical action are those actions that can be done with the help of using your energy, your body, language. But mental actions are those actions that can only be done with the help of your mind. Okay, like liking, dreaming, thinking, these are the mental actions. Very many examples we have seen. We have also seen about the three kinds of verb in the three different times, like present tense, past tense and future tense. How you will recognize that the verb is used in which time. Like I have told you in the present verb, IES, S or ES will be put in the word as a suffix. Just like that you can see in this picture, sleeps, splashes and cries. Next, ed, if it is added like a suffix, that means it is past tense. Okay. Now next one, that is about the future tense. In future tense I have told about that if the word will, shall, going to, plan to, aim to, these words are there before any verb, that means that the sentence is in future tense. Okay. Now today we will study about the linking verb as I told you yesterday. Okay. So linking verb links its subject to a word in the predicate. Okay. Now what is the difference between helping verb and linking verb? It will be the difference. Please listen it very carefully. Linking verbs express a condition or a state of being. Like, what is your status? Yesterday I have already made you understood about what is the state of being. State of being, it means what is your situation. Like, the cow is blue. In this picture you can see that the cow is blue. This is the situation of the cow, and that's why the cow is looking blue. That means that the cow is blue. This is the status of the cow. Like, I am a teacher. Teacher is my status. You are a student. A student is your status. One more thing it includes. Like, I have something. Like my possession. Like I say that I have a camera. I have a speaker. I have a blackboard. I have a projector. Whatever I have, it comes in our possession. That means that when the verbs are used to tell the situation of somebody, that verbs will be called linking verbs. Okay? Linking verb means like जैसे कोई चीज अगर आपके पास है या जो आपकी परिस्थिति के अंतर्गत आता है, वो दोनों ही चीजें किस में आ जाती है, आपके लिंकिंग वर्ब में आती है। और इसमें आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि दो तरीके के वर्ब का हम यूज करते हैं। एक तो वो जो आपकी पोजीशन को बताती है, लाइक इज, एम, आर, ये सारी हो गई, वॉज, वर, ये सारी हो गई। और दूसरी होती है हैज, हैव और हैड। ये तीन और ये चार ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज हम किसी की सिचुएशन बताने के लिए करते हैं। तो आपको क्या पता चला बच्चों कि लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो नाउन और मतलब नाउन नहीं सॉरी जो
सब्जेक्ट और सेंटेंस में कोई भी वर्ड दिया हो उन दोनों के बीच में एक संबंध बताती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. These are called linking verbs. These are, let me show you some example that you will be able to understand. There are 9 common linking verbs. Kindly take the screenshot of this picture. Okay? Am, be, is, see, was, are, being, were and become. These are linking verbs. Okay? Let me give you example using these words like am. Am is the word. So what I will say, I am a student. यहाँ पे क्या पता चला? हमने बच्चे की स्टेटस के बारे में बताया. बी का यूज किया है. Like the thing to be served, the food to be served. मतलब ये खाना क्या किया जाएगा? परोसा जाएगा. तो यहाँ पर ये जो खाने की सिचुएशन के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में बताया जाएगा कि ये खाना किस लिए है? परोसने के लिए है. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बी का यूज कर दिया. बी का मतलब होता है होना. कोई चीज है, अगर कोई चीज है तो इसका मतलब वो बी में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन दैट इज. लाइक सोहन इज अ गुड फ्रेंड. इट मीन्स इस वर्ड इज टेलिंग अबाउट सोहन. सी. सी मतलब दिख रहा है. Like I say that this classroom seems clean. This classroom. Okay. Next, was. Was means था. It means I said like in last year I was class monitor. It means I am telling my status that in the last year I was the class monitor of class. Next one, are. These are my friends. Being. It is being done. Were. They were good friends. Like Mohan and Sohan we are talking about. Mohan and Sohan were good friends. Become. Like this boy become an IAS officer. So these all common linking verbs tells about someone's possession, someone's status. To remember these linking verbs, use this saying. Kindly take the screenshot. At last, I think you must have taken the screenshot of this screen. Okay? All boys in school work. Okay? Why it is given? It is given to make you learn speedily that with the help of A refers to am and are. B refers to be, being and become. I refers to is. School refers to seen. And वर्ब refers to was and were. इसको नोट कर लो बच्चों. ये एक तरीके का वो है, क्या कहते हैं इसको? सूत्र बोलते हैं हम लोग. इसको बोलते हैं निंजा टेक्निक बोलते हैं. किसी चीज को लर्न करने की निंजा टेक्निक है ये. क्या निंजा टेक्निक है? कि ऑल बॉयज इन स्कूल वर्क. इसको 2-3 बार अगर आप लोग रट लोगे, ऑल बॉयज इन स्कूल वर्क, ऑल बॉयज इन स्कूल वर्क, ऑल बॉयज इन स्कूल वर्क, ऐसे अगर आप लोग लर्न कर लोगे तो दैट विल बी इजी. और इससे पता कैसे करना है? ए का मतलब है एम और आर से. बी का मतलब है बी, बीइंग और बिकम से. आई का मतलब इससे है. स्कूल का मतलब एस से है. और वर्क पे डब्ल्यू का मतलब वॉज और वर से है. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. लेट्स मूव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स. A helping verb helps a main verb express action or precise the shades of meaning. Okay, the combination of one or more helping verb is called a verb phrase. Class, you don't have to understand about the verb phrase because you are very small to know about the verb phrase. Okay, it will be told in the later chapter because phrases and clauses is also given in your course. Okay, so Elmer was using the computer. This boy is Elmer. Actually, it is not a boy. It is a child. Okay, and he is working on computer. So
Emma was using the computer. In this sentence you can see the main action verb is using. The main action verb is using. And using the computer, this clause is connected with Emma. Okay? ये जो Emma है और using the computer है, इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड है? Was. ये जो वर्ड was है, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है इन दोनों के बीच का संबंध. अगर was की जगह is लगा देते तो क्या बताता कि ये लड़का कंप्यूटर अभी यूज कर रहा है. was लगा दिया, इसका मतलब वो यूज कर रहा था. और अगर will be लगा देता तो be यूज कर रहा होगा हो जाता. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड was है, ये बता रहा है कि एक्शन कब हुआ. एक्शन क्या हुआ ये तो एक्शन वर्ब बताएगा, लेकिन एक्शन हुआ कब ये किससे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब was. आया समझ में? मतलब कि was जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग मतलब जो वर्ब को हेल्प करता है, जो वर्ब को हेल्प करता है. क्लास अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Now let me tell you a little about the verb phrase. Class. Some of the verbs are not in the single word. You might be knowing about those verb phrases. Let me give you some example. Like put on. Put on means किसी चीज को पहन लेना. Put up मतलब कोई चीज रखना किसी चीज के ऊपर. Like keep on का मतलब करते रहना. Go on का मतलब कंटिन्यू करना. ये सारे वर्ड्स जो हैं ये वैसे तो इनका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब हम इन्हें किसी प्रपोजिशन या किसी एडवर्ब के साथ लिख देते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है. ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? वर्बल फ्रेजेस. ओके, लुक एट दीज some helping verbs. May, might, must, be, been, been, am, are, is, was, were, do, does, did, should, could, would, have, had, has, will, can, shall. अब सुनो ध्यान से मेरी. इस हेल्पिंग वर्ब में आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सारे वर्ड्स जो हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक्शन बताते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज किए गए हैं जो मॉडल वर्ब्स हैं. कौन से हैं? मॉडल वर्ब्स. जब आप लोग अभी आप लोगों को मैं एक टेबल दिखाऊंगी, उस टेबल को आप लोग नोट कर लेना so that you can understand it more properly. Kindly take the screenshot of this picture. I think you must have taken class. Class, have you taken? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let's move on. So, let's explore a little more about the helping verbs. Other things to keep in mind, not every sentence will have a helping verb with the main verb. One main point, ऐसा नहीं होगा जरूरी कि हर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हो ही. It means it is not necessary that helping verb will be used in a sentence with the main verb. When you see an ing verb such as running, be on the lookout for a helping verb also. कभी कभी ऐसा भी होगा बच्चों कि कुछ वर्ब ing के साथ लिखे होंगे और उनमें कोई भी वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, मतलब किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा. अब एग्जांपल देखो तब तुम ज़्यादा समझ पाओगे. Sometimes there is another word which separates the helping verb from the main verb. One common example is not. Like the boy could not find his socks. Okay, the helping verb is could and the main verb is find.
अब यहाँ पे क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर बार हेल्पिंग वर्ब ही केवल मेन वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करेगा। क्या अगर इस सेंटेंस में नॉट को हटा दिया जाए, इफ वी रिमूव द वर्ड नॉट फ्रॉम द होल सेंटेंस, कैन द सेंटेंस गिव इट्स मीनिंग? No, not at all. That's why the not is necessary in the sentence. That's why I am saying that every time the helping verb will not have the main verb. Sometimes we need some more words to give the correct and mandatory meaning of the sentence. Those words who are used to get the meaning of the sentence, these are necessary. But not word is not the helping word. Kindly keep it in your mind. Every children, kindly keep it in your mind that not word is never a helping verb. It is what? Can anyone tell me? It is determiner. It is determiner. कोई भी अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप बताना कि ये डिटर्मिनर है। क्या है? डिटर्मिनर। Class, be silent. I will give you the opportunity to speak. Okay? Kindly be silent for this time. Okay? Later we will talk about this. Okay? Thank you. Next. So helping verb. A sentence may contain up to 3 helping verbs to the main verb. Who is disturbing the class? Manthan, it's you. Okay. Sometimes 2 or 3 helping verb will also used to tell the meaning of the sentence to help the verb. Like the dog must have been chasing the cat. In this sentence you can see chasing is the main verb and must have been. These 3 helping verbs are used to help the word chasing. That means that in some sentences single helping verb are used. Some sentences will have 2 helping verbs and some sentences will have 3 helping verbs. So it doesn't mean that one helping verb will be used in every sentence. It can be 2, either can be 3. Okay, the helping verbs are must have and been. The main verb is chasing. Now let's move on. Let's practice find the verb in each sentence. You have to find out all kind of verb. Okay class? Hopefully it will snow this year. In this sentence, will is the verb in this sentence. Why? In this sentence no main verb is given. No main verb is given, no action verb is given. This is telling about the event. Okay? In this sentence telling about the event. That's why the word will is the verb. Okay? Next sentence. The student asked his teacher a question. In this one there is one action verb, that is asked. Okay? In the third sentence, Jackson is very energetic. In this sentence, is the helping verb. Sorry, not the helping verb. Is the word is the verb, and in this sentence it is telling about the status. The students in the class were really loud. In this sentence it is also telling about the status. That's why the word is the verb. I am confused about algebra. I am is written. So the word am is verb. The girls sang in the competition. The
The word sang is the action verb. Always do your best. The word do is action verb. The earth revolves around the sun. The revolves word is action verb. So we have seen that different kind of verbs are used in different kind of situation and different kind of meaning in the sentence. Okay. Now let's move to the next point. Look, you can see the example is also given here. Okay. Now let's move on. Linking verb. Sorry. Now we will study about the transitive verb and intransitive verb. Okay. A transitive verb does have a direct object. Class, do you know about the direct object and indirect object? Let me tell you. The direct object means that the object is directly connected with the verb. Let me give you one simple example. Class, are you listening to me? Yes, ma'am. Okay. Yes, Listen ma'am. very carefully. This is very important to know. Many of the times children are not able to understand. Let me show you first that what are direct object and what are indirect object. Class, can you see the paint screen? Yes, ma'am. Okay. Look, first let me tell you about the class. Are you able to see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Direct object and indirect object. Direct object. First we will talk about the direct object. What is direct object? Direct object means when the verb is directly connected with the object, directly connected with the predicate. Let me give you one example. Like I gave you money. Okay. In this sentence you can see that I is the subject, you is the object and money is the object and give is the verb. अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें दो ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, दिख रहा है ना? अब इसमें दो ऑब्जेक्ट में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैं बता देती हूँ, तुम लोग सिर्फ सुनो ध्यान से। इसमें मनी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कहोगे मैम गिव के ठीक बगल तो यू लिखा हुआ है और गिव के दूर लिखा हुआ है मनी, तो ये डायरेक्ट कैसे हो गया और ये इनडायरेक्ट, सॉरी ये डायरेक्ट कैसे हो गया और ये इनडायरेक्ट कैसे हो गया? देखो कैसे हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगी, तुम लोग समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने आई ड्रिंक मिल्क, हमने ये वर्ड लिख दिया आई ड्रिंक मिल्क। हमने इस सेंटेंस में देखा कि ये जो मिल्क है ये ऑब्जेक्ट है और ड्रिंक क्या है आपका वर्ब, ठीक है? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है आपका ड्रिंक और ऑब्जेक्ट क्या है आपका मिल्क। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या क्या इनडायरेक्ट है, ये कोई हमारे पास कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है वो क्या है कि ये जो मिल्क है ये ऑब्जेक्ट की तरह ड्रिंक के लिए कैसे यूज हो रहा है। अगर आप इस सेंटेंस में दो क्वेश्चन बनाएं, क्या कह रहे हैं, दो क्वेश्चन बनाएं। पहला क्वेश्चन कि हु ड्रिंक मिल्क, अगर एक क्वेश्चन
बनाए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा? इसका आंसर निकलेगा हमारा आई ड्रिंक मिल्क। इसमें हम जो हु है ये इसका हम यूज क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट को जानने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट जानना हो तो हम क्या यूज करेंगे? हम लिखेंगे सेंटेंस हम सेंटेंस लिखेंगे व्हाट इज व्हाट डज सॉरी रॉन्ग अगर ये क्वेश्चन हो व्हाट इज ड्रंक बाय मी तो आप क्या दोगे इसका जवाब? मिल्क। क्या दोगे? मिल्क। और क्या लिखोगे? आई ड्रिंक मिल्क। ये क्वेश्चन जो आपको देख रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, ये सेंटेंस जो है बच्चों म्यूट रहो, तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान सुनोगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान सुनो मेरी बात। इस सेंटेंस में आपने देखा कि आई ड्रिंक मिल्क का जवाब देने के लिए हमने क्वेश्चन को पैसिव फॉर्म में बनाया ना। और इसमें हमको अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हमें ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते कि आई ईट एप्पल तो इसमें आपने देखा कि एप्पल किसके लिए यूज किया जा रहा है? ईट के लिए यूज किया जा रहा है ना। अगर हम यहाँ केवल सेंटेंस को लिख दिया आई ईट तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एप्पल वर्ड जरूरी है ये बताने के लिए, इस वर्ड को बताने के लिए। हर वर्ब ऐसा नहीं होता कि जिसमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिन्हें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत भी पड़ती है और कई बार दो ऑब्जेक्ट का यूज भी किया जाता है। जैसे ईट का मतलब होता है खाना। जब हम कोई चीज खाते हैं तो कोई चीज ही तो खाएंगे, केवल खाना तो नहीं लिख सकते। दूसरा पीना, जब हम कोई चीज पीते हैं ना, अब हम कहें लिखना तो लिखने के लिए हम किसी न किसी चीज का यूज करेंगे। मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकते। जैसे कि आपका हो गया ईट, दूसरा हो गया आपका ड्रिंक, तीसरा हो गया आपका राइट। ये ऐसे वर्ड, दूसरा हो गया गिव, टेक। क्या ये सब सेंटेंसेस को आप बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते इन वर्ड्स को, क्योंकि ईट का हम अगर कह दें तो जरूर ये क्वेश्चन उठेगा। अगर हम ये कह दें आई ईट तो ये क्वेश्चन जरूर क्रिएट होगा कि क्या खाते हैं। अगर हम कहें आई ड्रिंक तो ये क्वेश्चन जरूर रेज होगा कि हम क्या पी रहे हैं। तीसरा, हम अगर कहें हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। अगर हम कहें गिव, हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के इनकी मीनिंग कंप्लीट ही नहीं होती। तो ऐसे वर्ब जिनकी मीनिंग कंप्लीट ही नहीं होती है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ऐसे वर्ब्स के साथ हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऐसा होगा। कभी कभी बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी ये वर्ड लिखे जाएंगे, लेकिन ये सिचुएशनल होगा, हमेशा नहीं होगा, सिचुएशनल होगा। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट यू आर डूइंग तो मैंने कहा आई एम ईटिंग, तो यहाँ क्या जरूरी है कि हम ये
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि हाँ ईटिंग है तो कोई ना कोई चीज़ तो खा ही रहा होगा। तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या जो ऐसे वर्ब्स हैं जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के नहीं लिखे जा सकते, तो उनके लिए ही तुम्हें दो तरीके के ऑब्जेक्ट का यूज मिलेगा। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, Last, what is the time? Ma'am, 8:42. 8:42. 8:42 a.m. Okay, thank you, class. Listen to me carefully. Again, this example I am saying. I give money to the watchman. अब मैंने लिख दिया कि मैं वॉचमैन को पैसे देता हूँ, मैंने लिख दिया ना ये सेंटेंस। अब इसीलिए जो वर्ड गिव है, गिव मतलब कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। वो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मनी। आया समझ में अंतर? अब जैसे हम लिखे ईट, ठीक है, ईट के साथ हमें कुछ ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हमने लिख दिया एप्पल, ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ड्रिंक, ड्रिंक किसी ना किसी चीज को पिया जाएगा, वो पीने वाली चीज क्या हो सकती है, ऑरेंज जूस लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हमने लिख दिया राइट। राइट मतलब होता है लिखना, हम किसी ना किसी चीज को लिख ही रहे होंगे तो वो हमने क्या लगा दिया, राइट के साथ हमने लिख दिया लेटर, ठीक है। ऐसे ही हमने लिख दिया टेक, टेक में हमने लिख दिया ड्रेस। तो हमें ऐसे कुछ वर्ब है बच्चों जिनके साथ किसी न किसी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। ऐसे वर्ब्स के साथ जो वर्ब आएगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा, वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आज के बाद कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारे वर्ब्स के साथ नहीं होता है। अब जैसे हम कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अगर हम कहें आई थिंक, तो आई थिंक के साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि थिंक करना तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसी चीज में लिखें मेक आइडिया, मेक आइडिया, मेक आइडिया लिख दिया, मतलब अगर हम मेक लिख दें वर्ड, तो इसके साथ किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम कोई ना कोई चीज तो बनाएंगे ही ना, कोई ना कोई चीज तो जरूरी होगी ही ना जिसको हम बनाएंगे। मतलब पहला सेंटेंस देखो, मनी, व्हाट इज गिवन, मनी इज गिवन। व्हाट इज ईटन, एप्पल इज ईटन। और व्हाट इज ड्रंक, ऑरेंज जूस इज ड्रंक। What is written, the letter is written. What is taken, the dress is taken. What is made, the idea is made. So these are the examples you have understood about the direct object. Now let's move to the main point, that is about the transitive and intransitive verb. So in this sentence you have seen that the word is written direct object. आप ध्यान सुन लो दोबारा। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है सेंटेंस में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं होता और केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि आई गिव मनी टू यू, एक ये सेंटेंस हो गया। अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, आई गिव यू मनी। अब हमने क्या लिख दिया, आई गिव यू लिख दिया केवल, और मनी लिखा ही नहीं सेंटेंस में, तो तब तो ये क्या हो गया, आई गिव यू। तो क्या यू इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि दिया क्या चीज जाती है, मनी। खाया क्या जाता है, खाना या एप्पल, जो भी चीज है, जो भी ईटेबल थिंग्स है, ठीक है। पिया क्या जाता है, कोई ना कोई जूस होगा या पानी होगा या कोई भी चीज ऐसी होगी जो पी जाएगी। लिखा, कोई चीज लिखी जाएगी जिसपे लिखा जाएगा। अरे भाई आप लोग टेबल तो राइट नहीं कर सकते हो ना, मतलब टाइम वो वाली टेबल जो पहाड़ा वाली होती है उसको टेबल को राइट कर सकते हो, लेकिन क्या ये मेज वाली टेबल को राइट कर सकते हो? नहीं ना। मोबाइल को राइट कर सकते हो? नहीं ना। अलमीरा को कर सकते हो? नहीं ना। तो मतलब ऐसे वर्ब जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े ही होते हैं, उनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही
मतलब होता है अगर उनके साथ कोई भी अगर आलतू फालतू ऑब्जेक्ट दिया होगा या उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो उस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं मानेंगे। अब दिमाग में रख लेना, दोबारा कहीं मत कहना कि मैम ये तो ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया होने से कोई संबंध नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब्स केवल वही वर्ब होंगे जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा, जैसे कि ईट, ड्रिंक, राइट, टेक, गिव, इस तरीके के वर्ब जिनका एक ना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। आया समझ में? देखो इस सेंटेंस में द पायलट लैंडेड द एंटीक एयरप्लेन, ठीक है। इस सेंटेंस में लैंडेड के अगर द पायलट लैंडेड केवल लिखा होता तो ये क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। ये सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और रेज होता कि आखिर उसने लैंड किया क्या। और अगर इसके बाद हम ये लिख देते हैं कि द पायलट लैंडेड ऑन द प्लेटफॉर्म, ये अगर लिखा होता तो भी इस सेंटेंस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि लैंड तो किसी चीज को करेगा ना, किसी के ऊपर किया, इससे कोई संबंध नहीं। क्या चीज लैंड करी? क्वेश्चन इज रेज्ड, व्हाट इज लैंडेड, व्हाट इज ड्रंक, व्हाट इज ईटन, व्हाट इज रिटन, व्हाट इज लाइक्ड। तो जो चीज डायरेक्ट के वर्ब के साथ डायरेक्टली जुड़ी होगी केवल वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और इस सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द एंटीक एयरप्लेन, क्योंकि ये लैंडेड वर्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। एयरप्लेन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट आंसर्स द क्वेश्चन लैंडेड व्हाट। क्लास आया समझ में सबको? क्लास Yes, ma'am. कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजन में अभी तक नहीं समझ में आई होगी तो वो तुम लोगों का बाद बताऊंगी। अभी एक पॉइंट और बच गया इंट्रांजिटिव, उसको भी खत्म कर दे। इंट्रांजिटिव वर्ब इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होता दूर दूर तक का। जैसे देखो इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज नॉट सेइंग दैट इन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तब भी वो ट्रांजिटिव ही कहलाएगा, ना कि इंट्रांजिटिव। आया समझ में? फिर से सुन लो, ट्रांजिटिव वर्ब केवल वही होगा जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो भी वो सेंटेंस ट्रांजिटिव कहलाएगा। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव। लिंकिंग वर्ब्स मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि क्या उसका एक निंजा टेक्निक बताई थी। Intransitive verbs never answer the question who or what, ठीक है। Now example is the pilot landed carefully। अब इस सेंटेंस में क्या केयरफुली आपका ऑब्जेक्ट है? नहीं, केयरफुली क्या है? आपका एडवर्ब है। अब देखो क्या लिखा है, देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसरिंग द क्वेश्चन लैंडेड व्हाट और हु। यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि उसने क्या लैंड किया या फिर किस पर लैंड किया या फिर क्या लैंड किया। जब हमें इस क्वेश्चन का इस सेंटेंस से जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस तरह का सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है मींस ये सेंटेंस क्या है? इंट्रांजिटिव। क्या है? इंट्रांजिटिव। अगला लेट्स प्रैक्टिस होपफुली we have already done, I think. Okay, look, int and pre-array, that means that intransitive and transitive. Now see, hopefully it will snow this year. In this one you can see that it will snow. यहाँ किसी एक्शन की बात हो रही है, यहाँ कोई एक्शन की बात नहीं हो रही ना कि ये इंट्रांजिटिव हो। क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। In the second sentence, the student asked his teacher a question. यहाँ पर एक्शन हो रहा है। हाँ बोलो बेटा। Transitive. हाँ बेटा, ये तो मैं आंसर दिख ही रहा है आपको, डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम एग्जाम्पल्स कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? हम कल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आज केवल देख लो तुम लोग। एक्शन इज वेरी एनर्जेटिक। इन दिस वन द इज वर्ड इज intransitive. Why? Because it is telling about the situation, it is telling about the status of the action. Fourth sentence, student in the class were already loud. It is intransitive. Why? Because the verb, ये जो verb लिखा हुआ है ये क्या है? ये linking verb है। क्या है बच्चों? Linking verb। मैंने बताया है तुम लोगों को। I am confused about
अलजेब्रा, इसमें एंड भी क्या है, इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन बता रहा है। द गर्ल sang in the competition, this is action verb. okay, the seventh one, always do your best, ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी इंट्रांजिटिव है। क्यों? ये तो नहीं लिखा है ना कि अर्थ रिवॉल्व क्या करती है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। रिवॉल्व खुद कर रही है, यहाँ तो अर्थ खुद ही रिवॉल्व कर रही है। ये तो नहीं कह रही किसी चीज को घुमा रही है, घुमाती तो ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर नहीं घुमा रही है तो ये रिवॉल्व लिख दिया है केवल, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। ओके, सो क्लास नाउ टुडे सेशन इज एंडेड, दिस मच ओनली, थैंक यू।